We want to carry on where we stopped last week. We are doing a series on blessings through the grace of God. और पिछले सप्ताह जहां हम रुके थे वहीं से आज हम शुरू करेंगे. हम अनुग्रह के द्वारा आशीषों को देख रहे हैं. This is our fourth session on this theme. ये चौथा सत्र इस विषय के ऊपर हम देख रहे हैं. We've been focusing about how today, the New Testament time, the blessings of God are given to us unconditionally. और आज हम देखते हैं नए नियम में कैसे प्रभु की आशीषें हमें बिना किसी शर्त के दे दी गई. The Old Testament time was conditional. पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि वो शर्तों के साथ थे. Blessings for obedience, curses for disobedience. और जो आज्ञाकारिता के लिए आशीषें थी, अनाज्ञाकारिता के लिए श्राप था. At the time of the law. वो समय भी व्यवस्था का समय था. And in the New Testament we read about how in John 1:16, from the fullness of his grace we receive blessing after blessing. और यूहन्ना 1:16 के आधार पर हम पढ़ते हैं कि कैसे हमने अनुग्रह के ऊपर आशीष पर आशीष पाई. The 17th verse, next verse says, for the law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ our Lord. और एक यूहन्ना 1:17 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची. We also saw through Ephesians 1:3 that God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. और फिर जो हम इफिसियों 1:3 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सारी आशीषों का दाता है वो स्वर्ग में है. And we are called to be people who seek spiritual blessings more than material blessings. और फिर हमें बुलाया गया है इसीलिए कि हमें आत्मिक आशीषें प्रभु दें बनिस्बत इसके कि वो इस संसारिक आशीषों के, भौतिक आशीषों के. The last 3 sessions we spoke first on wisdom through his grace, blessings of wisdom. पहली बात हमने जो देखा था कि वो हमें बुद्धि देते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा से, ये आशीष है. And second session we spoke about power or strength through grace. और दूसरा हमने देखा था जो आशीष परमेश्वर की आशीष वो थी सामर्थ हमें मिलती है उनके अनुग्रह के द्वारा से. And third session we spoke about peace and joy. और तीसरा हमने देखा था आनंद और खुशी के विषय में. They're all आनंद और शांति के. आनंद और शांति के विषय. And these are all spiritual blessings. और ये सब की सब आत्मिक आशीषें हैं जो हमें मिलती हैं. Today we're going to speak on faith. और आज हम विश्वास के ऊपर बात करने जा रहे हैं. Faith and love. प्रेम और विश्वास. And sometimes we tend to think that faith is something we develop by ourselves. और कई बार हम सोचते हैं कि विश्वास वो है जिसको हम अपने अंदर उपजाते हैं. For example, somebody is having a problem and is facing a thing, we say, come on, have more faith, we tell them. और कई बार किसी को कोई समस्या में से कोई भाई गुजर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं अपना विश्वास को मजबूत करो, बढ़ाओ अपने फेथ को. The Lord spoke about some people who have no faith, some have little faith, some have great faith. और बाइबल में देखते हैं हम कई बार किसी के पास, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि छोटा विश्वास, थोड़ा विश्वास और बिना विश्वास के भी लोग थे. In his own hometown he couldn't do miracles because of lack of faith. Pardon me? In his own hometown he couldn't do many miracles because of the lack of faith of the people. अपने निवास के स्थान में, निवास जहां प्रभु ने जन्म लिया, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण से बहुत सारे अद्भुत कार्य नहीं कर सके. About the own disciples he told them at one point of time, ye of little faith. और अपने चेलों को भी एक बार उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासियों. But Pharaoh, a Phoenician woman who brought a daughter to be healed of demon possession, he told her he got great faith. लेकिन जो एक फिनिकिया की स्त्री थी उसको उन्होंने कहा कि इसका विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है. And we realize from this there are different measures of faith. और फिर इससे हम समझते हैं कि विश्वास का अनुपात अलग-अलग. Faith is a gift from God given through His grace. और विश्वास जो है परमेश्वर का दान है, उसके अनुग्रह के द्वारा से हमें मिलता है. Romans 12:3 says, we all have a measure of faith which God has given us. रोमियो 10 और 12 में हम पढ़ते हैं. No, sorry, 12th chapter verse 3, not 10-12. 12th chapter verse 3. 12 उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसी ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे.
So we all have a measure of faith which God has given us. तो हमको सबको प्रभु ने परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है। From Hebrews 12:2 we understand Jesus is the author and perfecter of our faith. इब्रानियों 12:2 में हम पढ़ते हैं, 12:2 में हम देखते हैं, वहां पे प्रभु ने कहा कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। It's given to us by His grace. We don't generate faith by ourselves. We receive faith. ये प्रभु की ओर से मिलता है, ये हम अपने अंदर उपजाते नहीं हैं इस विश्वास को। That is why we read about the disciples, the apostles, when they've told to forgive 7 times a day, they tell Jesus, increase our faith. और इसीलिए हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने बोला कि हम कितनी बार एक व्यक्ति को क्षमा करें, तो प्रभु ने कहा कि 7 का 70 गुना क्षमा करो। तब चेलों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। They understood that faith comes from Him. और उन्होंने इस बात को जान लिया था कि विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। We read in the Bible about how all these people of God who did wonderful things for God, they all served God by faith. और हम देखते हैं वचन में जो लोगों ने बड़ी प्रभु के सामर्थ से बड़े-बड़े काम किए, उन लोगों ने सब ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से विश्वास पाया। Enoch walked with God 300 years. हानोक जो है 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। How do you walk with God? कैसे वो चला परमेश्वर के साथ? 11th chapter of Hebrews verse 5 and 6 say, इब्रानियों की पत्री 11 और 6 में हम पढ़ते हैं, by faith Enoch was taken up to life, he didn't experience death because God took him away. और विश्वास के 11:6 और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। That's verse 6. Verse 5 says that about how Enoch was taken up to life, he didn't experience death because God took him away. Before he was taken up, he was commended as one who pleased God. 5th verse. तो छठी आयत हमने पढ़ा था, अभी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। If we want to walk with God consistently, we must be people who consistently please God. अगर हम लगातार परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। And to please God, we have to walk by faith. और अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास के द्वारा हमें विश्वास में चलना है। Without faith, it is impossible to please God. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। And joyful obedience comes from faith. और आनंद के साथ आज्ञाकारिता विश्वास के द्वारा ही हमें मिलती है। So 1 John chapter 5, 3, 4 and 5 say. पहला यूहन्ना 3 और उसका John chapter 5 verses 3 to 5. यूहन्ना की अंजील उसका 5th chapter. उसका 5वां यूहन्ना की अंजील 5वां अध्याय 3 से 5 आयत तक हम पढ़ते हैं। Read in Hindi please, just Hindi all over. इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। First letter of John chapter 5, 3, 4 and 5. Not Gospel of John. First letter of John. वही मैंने बोला था, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 3 to 5। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3 से 5। Sorry, wait a minute. Let me is it chapter 5, 3, 4, 5? हाँ, that's correct. Yeah, okay. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Here say very clearly that obedience to his commandments is not burden, कठिन नहीं है। और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। Why? Because we do it by faith. क्योंकि हम विश्वास के द्वारा से आज्ञा पालन करते हैं। Romans chapter 1 verse 5 says obedience comes from faith. और रोमियो की पत्री 1 और 5 में हम पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। Christian life is by faith and Christian ministry is by faith. मसीही जीवन विश्वास के द्वारा है, मसीही सेवकाई भी विश्वास के द्वारा है। Constantly we have to ask God for more and more faith. लगातार हमें प्रभु से और अधिक विश्वास मांगना है। When I ask God for something, we should also know how He answers that prayer.
और फिर जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम इस बात को अच्छे से जान लें कि वो प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है। We must know why we're asking and how he answers. और पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों मांग रहे हैं, और दूसरी बात प्रभु का तरीका क्या है उत्तर देने का, ये भी हमें जानना चाहिए। When you ask God for more faith, what's the prime reason for asking God for more faith? अगर हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, तो हमें जानना चाहिए कि हम विश्वास किस लिए बढ़ाना चाहते हैं। It's to please him. इसलिए कि हम प्रभु को प्रसन्न करें। When you please him, you're able to walk with him. अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो हम उनके साथ चलने वाले योग्य बन सकेंगे। When you follow him and walk in step with the Spirit, goodness and mercy follows all the days of our lives. और जब हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हम अपने जीवन भर उनके आज्ञाकारी बने रह सकते हैं। So in Christian life, you should be constantly asking God for more faith to be able to obey him and thereby please him and walk with him. And that process, our life and ministry will flow from that. और फिर जब हम प्रभु मसीही जीवन में जब हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके पीछे चलना है, और उनके पीछे चलना है तो उन्हें प्रसन्न करना, विश्वास के द्वारा प्रसन्न करना आवश्यक है। So how does God answer our prayer for increase of faith? और कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं? He gives opportunities to hear the word of God and read the word of God. वो कई बार हमें मौका देते हैं कि हम उनके वचन को पढ़ें और उनके वचन को सुने भी। He open doors for us, give us time to be able to, read the Bible and hear the word of God being spoken. Opportunities give us because faith comes from hearing the word of God. क्योंकि वो कई बार हमें ऐसे मौके देते हैं कि हम उनके वचन को सुने, वो ऐसे द्वारों को खोलते हैं ताकि हम उनके वचन को सुने, क्योंकि विश्वास वचन के सुने जाने से आता है। Romans 10:17 says faith comes hearing the message to the word of Christ. रोमियो 10 और उसकी 17 आयत में हम पढ़ते हैं, Yes, 10:17. रोमियो 10:17 उसमें जो सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। As the word of God is taught to us, then as we hear this word, our faith increases. We strengthen faith through the teaching. और जैसा वचन हमें सिखाया जाता है या फिर हम वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास उसके सुनने से और पढ़ने से बढ़ता है। And then when you put the word of God to practice, we'll face difficulties in life. लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और पढ़ते भी हैं और उसको अपने प्रायोगिक जीवन में हम लागू करते हैं, तो फिर हमारे को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। The difficulties come so that our faith gets refined. और हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमारा विश्वास परखा जाता है। We always ask God for more faith, but He allows us to go through trials and we begin to wonder, why Lord, why am I having difficulties? और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, और जब प्रभु हमारे विश्वास को परखना शुरू करते हैं बढ़ाकर, तो फिर हम कहते हैं हे प्रभु मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, ऐसे हम बोलते हैं। These difficulties come to refine our faith. ये कठिनाइयां, ये परेशानियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हमारे विश्वास को प्रभु ता करके और ऊंचा बनाएं। Peter writes in 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7. पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7 आयत में पत्रस लिखते हैं, Our living in this world, we have faced all kinds of trials. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और verse 7 says, these have come that a faith of greater world than gold, which perishes in the refined by fire, may be proved genuine. और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So we forget that when we ask God for faith, He allows us to go through difficulties by applying scripture, that faith gets refined. और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, और फिर वो हमारे जीवन में कठिनाइयों को लेकर आते हैं ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, तो हम प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु ये परेशानियां मेरे जीवन में क्यों। In a way, difficulties come because of our asking God for more faith. और हम ये अच्छे से समझ लें कि हमने प्रभु से विश्वास मांगा, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां या कठिनाइयां आई हैं। It's like when you ask God for more faith, He gives us more difficulties. और pardon me. When you ask God for more patience, He'll allow difficulties to come to our life, because difficulties work with patience. Troubles work with patience. कभी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी सहन शक्ति या सहनशीलता को बढ़ाएं,
तो फिर प्रभु हमारे जीवन में कठिनाइयां या परेशानी लेकर आते हैं ताकि हमारी सहनशीलता को परखें, तो फिर हम विचलित होते हैं। Like for example, we ask for more patience. Give me more patience, Dheeraj. कई बार हम सहनशीलता या धीरज को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Troubles work with patience, Romans 5:2 says. So we're asking for trouble when you ask for patience. रोमियो 5 और 7 में हम पढ़ते हैं, Not those are 2 and 3, brother, not 7. रोमियो 5 Verse 2 and 3. 2 और 3, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज। Christ said Dheeraj. That means patience comes through difficulties. इसका अर्थ यह है कि जो धीरज है वो कठिनाइयों से ही आता। In the same way, when you ask God for more faith, He'll allow us to face difficulties because the difficulties are designed to refine our faith, like gold refined through fire. और इसी रीति से जब हम विश्वास को बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो प्रभु हमें कठिन परिस्थितियों से ले जाते हैं ताकि हमारे विश्वास को परखें और ताए हुए सोने के समान निखरा हुआ बनाकर लाएं। He will test us through difficulties. वो हमारी परीक्षा करते हैं कठिनाइयों के द्वारा से, ताकि हम परखे जाएं। But He's a faithful God. तो हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He won't allow us to be tested more than we can bear. 1 Corinthians 10:13 says. To read that, 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10:13 को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। So when difficulties come, they may not go immediately, but He'll give us strength to face the difficulty. He's a faithful God. कभी-कभी हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वो यूं ही समाप्त भी नहीं हो जाती, वो हमें उसमें से लेकर जाते हैं ताकि उसमें हमारा विश्वास परखा जाए। In that process, become strong in the Lord, like gold refined through the fire. Our faith gets refined. और इस रीति से उस परखे जाने की परिस्थिति में जैसे सोना आग में से भट्टी में से जाता है और परखा जाता है और फिर वो एक निखरा हुआ सोना बनता है, ऐसे हम भी निखारे जाते हैं परमेश्वर की ओर से। 100 years before Peter wrote the letter, Job writes, Job says in the book of Job, chapter 23, verse 10. और पतरस ने लिखा उससे पहले अय्यूब ने अपनी पुस्तक उसकी 23वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा, After he's tested me, I will come forth like gold. परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। So he knows fully well that God is testing him and he'll come out of the difficulties like gold refined through fire. So faith is refined through difficulties. और अय्यूब जानता था कि वो परमेश्वर उसे जब सोने की तरह ता लेगा तब वो उसमें से निखरा हुआ निकलेगा, और जब तक हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हमें आग की भट्टी में से परीक्षाओं में से नहीं ले जाएगा तो हम भी निखरे हुए नहीं निकलेंगे। Not only through word of God and difficulty of faith increases, even by the anointing of the Holy Spirit, we have the gift of faith. और ना सिर्फ वचन के सुनने से या पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है, वरन परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा से भी हमारा विश्वास बढ़ता है। In 1 Corinthians 12 chapter verse 8 to 10, we read about the 9 gifts of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों उसका chapter 12, उसका 12 अध्याय उसकी 8, from 8 to 10, we read about the 9 manifestations of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से लेके 10 आयत के बीच में हम आत्मा के फल के विषय में पढ़ते हैं। One of them is the gift of faith. और उनमें से एक गुण आत्मा के फल का है कि वो परमेश्वर का विश्वास का वरदान। This gift of faith is over and above our measure of faith. और ये जो आत्मा से विश्वास का जो वरदान है, ये हमारा परमेश्वर के द्वारा से परखे जाने से सिद्ध है। This measure of faith depends upon various factors like us asking God for more faith. और जब हमारे विश्वास का परिमाण जो है, जितना हम प्रभु से विश्वास मांगते हैं उसके अनुसार से वो नाप के हमें देते हैं परिमाण से। As we hear the word of God, faith increases. जैसा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। As we face difficulties because obedience of God's word, faith increases. जब हम
कई परेशानियों से, कठिनाइयों से होकर जाते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। As we have fellowship with God's people, our faith increases. और जब हम लोगों के, विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। As we depend upon the Holy Spirit anointing, we have the gift of faith over and above our measure of faith. और जब हम आत्मा के द्वारा से अभिषेक पाते हैं, तो भी हमारा आत्मा का जो वरदान है, विश्वास का जो वरदान है, वो बढ़ता है। So don't imagine a crisis before it comes. और इससे पहले की परेशानियां या घटिया आए, हम उसके बारे में चिंता ना करें। We read about many people who face very many major difficulties with so much of faith and begin to wonder, Lord, I don't have so much faith. और कई बार बहुत सारे लोगों के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं कि उन लोगों ने शुरुआत में ये बोला कि प्रभु मेरा विश्वास तो इतना नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से होकर के गुजर गए। We start comparing with other people. और फिर अक्सर हम लोगों के साथ अपनी तुलना भी करना शुरू कर देते हैं। Please don't do that. ऐसा ना करें। The difficulty comes to you, at that time God give you the gift of faith to the Holy Spirit for you to face the difficulty. He's a faithful God. और जब हमारे जीवन में परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं, तो परमेश्वर हमें उसमें से पार होने के लिए सामर्थ्य भी देते हैं, विश्वास को भी बढ़ाते हैं। Don't imagine the problem till it comes. When it comes, you'll have the faith to face it. The problem may not go, but faith will come, gift of faith come through the Holy Spirit. और पहले से ही हम सोचना ना शुरू करें, जब परेशानियां आएंगी तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, लेकिन जब आएंगी तो प्रभु उसके साथ हमें सहायता भी करेगा, हमारे विश्वास को भी बढ़ाकर हमें देगा। One more blessing of grace is us receiving and manifesting the love of God. और एक और जो आशीष है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हमें मिलती है, वो है परमेश्वर का प्रेम। The 13th chapter of 1 Corinthians, the last verse, 13th verse says, now three things remain: faith, hope, and love. The greatest is love. पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय की 13वीं आयत, जो आखिरी आयत है, उसमें हम पढ़ते हैं कि विश्वास, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। Instantly, all three are gifts of grace. ये तीनों तो परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। Faith is, as I've just been sharing, it's by the grace of God. It's a blessing of grace of God. Faith. अभी हम विश्वास के बारे में चर्चा कर रहे थे। परमेश्वर के अनुग्रह से ये विश्वास हमें मिलता है। Also hope. और आशा भी हमें मिलती है। In 1 Corinthians 15:3 talks about, Paul writes about, may the God of hope fill you all joy and peace as you trust in him, and you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसकी तीसरी आयत में, the 13th verse, 15th chapter verse 13. 15-13 में हम पढ़ते हैं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा। Wait a minute, which one are you reading? I'm reading 1 Corinthians 15:13. Not the first, sorry, Romans 15:13. I made a mistake. Romans 15:13. रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 15 आयत। No, 15th chapter verse 13. रोमियो 15:13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Through the Holy Spirit's power we have hope. परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें आशा मिलती है। Now the anointing is given to us only by the grace of the Lord Jesus Christ. और हमें अभिषेक प्रभु करते हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा से अभिषेक होता है प्रभु के। Even anointing is not something we work for or we achieve it, we receive it. Receive the anointing. परमेश्वर के जो आत्मा का अभिषेक है, वो हम उसको हासिल नहीं करते हैं, वो प्रभु देते हैं। Some people think they must qualify for the anointing. और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हम प्रभु के अभिषेक को पाने के लिए हम योग्य हैं। They feel that they must be very holy to receive the anointing. उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत धर्मी या पवित्र होना है परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। The Lord doesn't give us anointing because we are holy. He gives us the anointing to make us holy. प्रभु हमें इसलिए अभिषेक नहीं करते हैं कि हम पवित्र हैं, प्रभु इसलिए अभिषेक करते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। In other words, by the anointing of the Lord we are sanctified, we makes us holy. Similarly, by the anointing also we receive the love of God. तो प्रभु की ओर से जब हम अभिषेक पाते हैं तो हमारा पवित्रीकरण होता है, और इसीलिए we receive hope, we fill with hope.
और जब हमारा पवित्रीकरण होता है तो हमें आशा भी मिलती है। So all three, faith, hope, and love, are all blessings of grace given freely to us. We only have to seek and ask God. सो हमारा विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों हमें मुफ्त में प्रभु की ओर से दिए गए दान हैं जो हमें मुफ्त में मिलते हैं। Now let's come back to love. अब वापस आते हैं प्रेम में। This love is poured on us through the Holy Spirit. और ये जो प्रेम है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। The church in Colossae was known for their faith in Christ and love for each other. तो कोलोसियों की जो कलीसिया थी वो परमेश्वर के ऊपर से विश्वास और प्रेम दोनों में पहचानी जाती थी। Now, faith in a God who is a personification of love will manifest in love, obviously. और विश्वास जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो उसी दान के द्वारा से वो लोग पहचाने जाते हैं परमेश्वर के प्रतिरूप में। When God is love and you put a faith in a God of love, we can't but have His love in us. और जब जो परमेश्वर जो प्रेम है उसमें हम विश्वास को स्थापित करते हैं तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। In fact, one of the expressions of love is through faith. और जो हमारा प्रेम अगर हमारे One जीवन of the expressions of faith is love. One of the expressions of faith is love. और जो हमारा जीवन में विश्वास है उसका प्रकटीकरण उस प्रेम के द्वारा से होता है। For example, in the church in Galatia, there was a problem where the Jewish Christians tried to force the Old Testament law on the Gentile Christians. और जब गलतियों की कलीसिया में कुछ ऐसा था कि यहूदी लोग जो थे वो नए अविश्वासियों में से जो विश्वास में आके मसीही बन गए थे उनके ऊपर व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। They were Jewish Christians. They were forcing the Gentile Christians, the Greek Christians, to obey the Old Testament law, the law of Moses. यहूदी जो मसीही लोग थे वो यूनानी मसीहियों के ऊपर व्यवस्था की बातों को लागू कर रहे थे। They were saying you must be circumcised, you must keep the Sabbath, you must do all the Old Testament rituals. और वो पुराने नियम के सारे नियमों को उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें सबत को मानना चाहिए, तुम्हें खतना कराना चाहिए। There's a problem actually not only in Galatia, it's also in Antioch. और वो सिर्फ गलतियों में ये बात नहीं थी, ये अंताकिया में भी ये बात थी। The Apostle Paul wrote to the church in Galatia, in Galatians 5 or 6, he writes, और पौलुस ने गलतियों की कलीसिया को लिखा उसके 5वें अध्याय उसकी 6ठी आयत में। the context of circumcision. गलतियों 5 और 6 में हम पढ़ते हैं कि और यीशु और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। So in other words, faith expressing itself through love. और जो प्रेम है उसका विश्वास का प्रकटीकरण प्रेम के द्वारा से ही होता है। So in other words, when you have faith in Christ, it results in love. अगर आपके अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो आपके जीवनों में से परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। We know in the Bible that after we turn to Christ, we are called to live by the word, Matthew 4:4. और जब मत्ती 4:4 में हम पढ़ते हैं कि हमें बुलाया गया है कि परमेश्वर के अनुसार हम जिएं, Live by the वचन के word. अनुसार, वचन के परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिएं। Number 2 means live by faith, Romans 1:17. तो दूसरी बात हम देखते हैं रोमियो 1:17 में कि हमें विश्वास के द्वारा से जीना है। We are called to live by the Spirit of God, Galatians chapter 5 verse 16. और गलतियों 5 और 16 में हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से जीना है। To live effectively by the word, spirit and faith, we need to be full of the word, full of the spirit, full of faith. और अगर हमें विश्वास में बने रहना है तो परमेश्वर के वचन में बने रहना है तो हमें विश्वास और वचन में और आत्मा में परिपूर्ण होना है। Full of the word, full of the spirit, full of faith. परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा में और पूर्ण परमेश्वर के विश्वास में हमें परिपूर्ण होना। All these three are blessings given by the grace of God. और ये तीनों आशीषें हमें परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्राप्त करते हैं। Knowing the word of God is because of his revelation he gives us by his grace. और हम जानते हैं परमेश्वर अपने वचन को हम पर प्रकाशन करते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा से। So when you're full of the word, spirit and faith, we're able to live by the word, spirit and faith. तो जब हम परमेश्वर के वचन से, आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं तब हम उनके वचनों के अनुसार जीवन जी सकते हैं। And very interestingly, love is manifested through all these three.
और इन तीनों के द्वारा से हम देखते हैं कि प्रेम का प्रकटीकरण होता है। Love through faith is Galatians 5:6. प्रेम विश्वास के द्वारा प्रेम गलतियों 5:6 में हमने पढ़ा। Love to the Holy Spirit, Romans 5:5. और रोमियो 5:5 में हमने पढ़ा कि विश्वास आत्मा के द्वारा। And love to the word is 1 John chapter 2 verse 5. और वचन के द्वारा पहला यूहन्ना और उसका Chapter 2 verse 5. उसका 2 और उसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा। There it says, if anyone obeys his word, God's love is made complete in him. और फिर वहां पे ऐसे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन पर जो कोई परमेश्वर के विश्वास को में विश्वास करता है, उसका वचन उसके जीवन में परिपूर्ण होता है। We should not be people who only focus on either word or spirit. Both we need anointing and the word. Both we need together. तो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों में संतुष्ट नहीं होना है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के विश्वास में, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में भी हमें बढ़ना है। Some people only focus on the word of God, leave out the Holy Spirit's power. और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को देखते हैं और आत्मा की सामर्थ को नहीं देखते। Some churches like congregations like that. कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं। They believe in, they have a lot of faith in God's word, focus on God's word, leave out the Holy Spirit's power. और वो उनका विश्वास है वचन में, वचन को मानते हैं, वचन की सामर्थ में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को वो नकार देते हैं। The other churches, they focus a lot on the experience in the Holy Spirit, leave out the written word of God. और कुछ लोग कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के ऊपर ही ज्यादा ध्यान आकर्षित रखते हैं और वचन को छोड़ देते हैं। They focus on the experience of the Holy Spirit. वो सिर्फ इसी बात पर ध्यान रखते हैं कि हमें आत्मा का वरदान मिला कि नहीं, Believe out the word of God. और लेकिन परमेश्वर के वचन को वो त्याग देते हैं। We need all three, the word, spirit and faith, all three we need. That what happens then is we manifest the love of God. और हमें इन तीनों की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास। इन तीनों की हमें आवश्यकता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए। Now I told you about the church in Colossae. They're known for faith in Christ and love for each other. और हम कलोसियों के बारे में देख रहे थे, कलोसियों की कलीसिया के बारे में, कि वो प्रेम और विश्वास में एक दूसरे में बढ़ चढ़ के व्यवहार करते थे। Faith in Christ, love for each other. That was the quality of the church. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये है कलीसिया की एक खूबी या गुण। And Colossians 1:8 says, their love was a love in the spirit. कलोसियों 1:8 में हम पढ़ते हैं, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। प्रेम जो आत्मा में है, that प्रेम, the love comes from the Holy Spirit. तो ये आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है। So therefore we have to be a people, when we live by the word, spirit and faith, we grow in the knowledge of God. और हम जब परमेश्वर के, हम वो मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा में, प्रेम में और विश्वास में बढ़ते हैं, और ये हमें परमेश्वर की आत्मा से मिला है। The Holy Spirit reveals the Lord to us. परमेश्वर का आत्मा ये हमें प्रकट करते हैं। The word of God reveals God to us. परमेश्वर का वचन परमेश्वर को हमें प्रकट करते हैं। And we live by faith. We know him by faith. We don't see him, but we still have faith in him. और हम विश्वास के द्वारा से उनको जानते हैं और अपने विश्वास में, प्रभु के विश्वास में हम बढ़ते हैं। Please don't read the Bible just to know the Bible. Read the Bible to know the God of the Bible. और हम बाइबल को इसलिए ना पढ़ें कि सिर्फ बाइबल को जाने, हम बाइबल को इसलिए पढ़ें कि हम बाइबल के परमेश्वर को जाने। I mean, know him more and more. By default, you manifest the love of God. और जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना ही हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कार्य करता है। In John 17:26, the Lord spoke to the Father in heaven. He prayed to the Father. 17th chapter of John, verse 26. और यूहन्ना 17:26 में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया उसको हम पढ़ते हैं, 17:26, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। The love you have for me will be in them. That's what he's praying to the Father in heaven. प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रेम तेरा प्रेम जो मुझ में था वो ही प्रेम इनमें भी रहे। And as he reveals God to us more and more, as we know him more and more, the love God the Father which he has for God the Son will be in us.
और जितना हम परमेश्वर को और अधिकाई से जानेंगे तो जो परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में था वही प्रेम हमारे भी जीवन में That love is आए। perfect love. वो प्रेम सिद्ध प्रेम है And that love will be in us as we grow in the knowledge of God. और वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा और हम में बढ़ेगा जितना हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। Like faith, love is not something we generate by ourselves. और जैसे विश्वास का हम उपार्जन नहीं करते उसको उपजाते नहीं, ऐसे ही प्रेम को भी हम उपजाते नहीं। This love we receive from God as we know Him more and more. और इस प्रेम को हम प्रभु से पाते हैं जितना हम उसको जितना जितना हम अधिक से उसको प्रेम करते हैं। And as you know Him more, you'll find that loving people, obeying God's word, becomes natural. It's a second nature to our walk with God. और जितना हम परमेश्वर को जानते जाएंगे उतना ही हम इस बात को समझ लेंगे कि परमेश्वर को जानना ये स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए। When we walk intimately with the Lord, like Enoch walked with God, then all the things in our lives will flow from the intimacy with God. और जैसे हानोक परमेश्वर के साथ चलता था ऐसे हम परमेश्वर की नजदीकी में चलते जाएंगे तो हम परमेश्वर को और अधिकाई से जानते चले जाएंगे। Loving people, including enemies, will not be an effort. It will be a natural expression of our faith in Christ. तो फिर जब हम अपने विरोधियों से भी अगर हम प्रेम करेंगे तो फिर उसके लिए हमें ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो हमारे जीवन का स्वभाव बन जाएगा। हम उनसे वैसे ही प्रेम करेंगे क्योंकि मसीह का प्रेम हम में वास करता है। These are all spiritual blessings given to us by the grace of God. ये सारी आशीषें आत्मिक आशीषें प्रभु के अनुग्रह से हमें मिली। Romans 8:32 says, रोमियो 8:32 ऐसा लिखा है वहां पर। He did not spare his own son, but gave him for us. How along with the son graciously give us all things are given to us graciously, not because we earn it or we deserve it. जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा परंतु उसको हम सबके लिए दे दिया कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वो परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हमें सब कुछ परमेश्वर देंगे। Very, very comforting for us to know that we don't generate anything by ourselves, no effort from our side. We only receive from God and manifest it to people and become spectators in what God does through us. और हमें इस बात को जानकर बड़ा आनंद होगा कि जो भी है जो इसको हम हासिल नहीं करते, वो उपजाते नहीं, ये सब कुछ हमें परमेश्वर की ओर से दान के रूप में मिलता है। प्रेम और विश्वास और आत्मा। Let's constantly seek to know Him more and more and seek spiritual blessings, not material blessings. और हम परमेश्वर को लगातार परमेश्वर की ओर ताकते रहें और उससे आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, ना कि संसार की भौतिक वस्तुओं के। As we walk with Him intimately and closely, everything we need for life and God has been given to us. और जितना हम प्रभु के नजदीकी में चलेंगे उतना प्रभु हमें बहुतायत से देगा। May God bless each one of us. प्रभु हम में से हर एक को आशीष